Hello everyone, welcome to Convert IAS. We are starting with a new theme today, and the theme is ratio and proportions. So this is the concept classes of ratio and proportion. Thursday discussion will be for your question solving part. Now let us understand what we will be learning in this session. First of all, we will go through the basics, then we will understand A is to B, f of A plus B calculation, how to convert A is to B and B is to C type into a single format. These are the question types. These are question session for your Thursday, and now we will cover the basics part. Now in this, let us begin with the basics. What are the basics? First of all, we need to understand what do you mean by a ratio. I secured 20 marks out of 50 apple. Isn't it a joke? I secured 20 marks out of 50 apples. ये क्या कुछ मीनिंग दे रहा है क्या? कुछ भी नहीं है. Now how to get a real meaning from this? Real meaning can go like this कि आपका मार्क्स का कंपैरिजन मार्क्स के साथ होना चाहिए, एप्पल का कंपैरिजन एप्पल के साथ होना चाहिए. दैट मीन्स सेम क्वांटिटी मस्ट बी कंपेयर्ड ऑफ द सेम टाइप. सेम टाइप मीन्स एप्पल का कंपैरिजन एप्पल के साथ होना चाहिए, केजी का कंपैरिजन केजी के साथ होना चाहिए. क्वांटिटी मस्ट बी सेम, द टाइप मस्ट बी सेम. अगर आप ग्राम्स को केजी के साथ कंपेयर कर रहे हो, बोल रहे हो कि 5:10 रेशियो में है, देन दैट मीन्स इट विल बी अ रॉन्ग कैलकुलेशन, रॉन्ग कंपैरिजन. So same type comparison with the same quantity must be done to give you a ratio. Ratio is just a indicator. That means it will give you a fraction. That means it will show you the change. What is that? Now suppose you have 20 rupees, I have 40 rupees. Quantity rupees, type भी same है, money comparison हो रहा है. 20 by 40, that means our ratio is 1:2. We are connected by the ratio 1:2. It just shows that what is our calculation basis. It is 1:2. We are connected by 1:2. As this value changes, so will this value change. We have done that in percentages also. So that is the basics part of ratio, meaning of ratio. Now understand. I have already told you this part in your, देखो मैंने बताया था ना, परसेंटेजेस में किसने कमांड कर लिया, मेरा सारे टॉपिक्स में कमांड हो जाएगा. क्यों? आई विल बी यूजिंग द सेम रेशियो मेथड एवरीवेयर. दैट आरएम मेथड आई विल यूज एवरीवेयर. द सेम ओल्ड स्टोरी गोज इन ऑल द टॉपिक्स. सो इसलिए कॉन्सेप्ट्स बहुत कम होते हैं इन माई सी सेट क्लासेस. इट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है. नाउ I have given you one example in ratio fraction comparison of percentages. I hope you remember that. Now what was that? Now suppose someone says a number is increased by 10% to give you the value yield as 110 or 440. Then find the number. If this is the question, then can I tell ये जो 10% है, it can be related as 1/10, and in this 1/10, what was your 10 का logic? 10 was the original number. 1 was what? The change. Why I wrote it as the change? Because the focus is on the change part. It is not on the final number part. Now what is your addition or subtraction हो रहा है? यहाँ पे addition हो रहा है. तो 10 will be added to 1 to give you the 11 as your answer. This was the ratio. This was the original number, this was the change, and this was the final number. I hope you got it. Similar quantities मैंने बता दिया. रेशियो का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? You can do it in the fractional representation. Either you can write it as A is connected to B, or you can write it as A is to B. Whatever fits you or whatever is given in the question, everything means the same. Few facts to remember. What is a compound ratio? A is to B ये सब नहीं आएगा, but since रेशियो का टॉपिक पूरा खत्म करना है, that is why I added this. Compound ratio is AP is to BQ.
A:B, P:Q मल्टीप्लाई हो गया कंपाउंड रेशियो। दे दिया कि 2:3 है, 4:5 है, फाइंड द कंपाउंड रेशियो। अगर आपको कंपाउंड रेशियो पता नहीं है देन यू विल कम एंड आस्क मी कि सर आपने बताया नहीं था। दैट इज व्हाई आई टेल एवरीथिंग। द नेक्स्ट वन इज अ डुप्लीकेट रेशियो। व्हाट इज अ डुप्लीकेट रेशियो? A:B गिवन, A:B लेना है, आंसर हो जाएगा A²:B²। दिस इज अ डुप्लीकेट रेशियो। व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो? A गिवन है, अगर आप √A:√B करना चाहोगे देन दैट इज अ सब डुप्लीकेट रेशियो। सिमिलरली व्हाट इज अ ट्रिप्लीकेट रेशियो? ट्रिप्लीकेट रेशियो इज A⁵:B³। दिस इज अ ट्रिप्लीकेट रेशियो। व्हाट इज अ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो? क्यूब रूट ऑफ A:क्यूब रूट ऑफ B इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। फैक्ट्स, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं बस बताऊंगा द थिंग्स दैट यू फॉरगॉट। इनवर्स रेशियो A:B गिवन है, व्हाट इज द इनवर्स रेशियो? B:A। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, let us understand direct proportionality. You know in physics S is equals to UT, पता है? What is S? Distance is equals to speed into time. Distance is equals to speed into time. So can I tell distance by time is equals to speed? Can I tell distance बढ़ेगा अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है? एक चीज देखो, अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब टाइम बढ़ेगा। अगर आप स्पीड 60 पे जा रहे हो, यू यूज टू रीच 100 किलोमीटर एट सडन टाइम, 60 पे जा रहे हो मतलब बीच बीच में ब्रेक लेके, अगर डिस्टेंस 200 हो गया तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। कैन आई टेल अंडर स्पीड बीइंग कांस्टेंट distance is directly proportional to the time. Under speed being constant, distance is directly proportional to the time. Can I tell speed is equals to distance by time? अगर आपका डिस्टेंस सेम है, आप ज्यादा स्पीड में जा रहे हो, टाइम आपका कम लगेगा। तो कैन आई टेल स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम? उल्टा हो रहा है, टाइम बढ़ेगा अगर आपने ज्यादा टाइम लिया, मतलब डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड आपका कम था। अगर स्पीड ज्यादा ले रहे हो टाइम अपना कम लगेगा। लेकिन यहां पे क्या है? इफ डिस्टेंस इज मोर, स्पीड बीइंग कांस्टेंट, टाइम विल बी मोर। दैट द सेम थिंग हैपेंड इन केस ऑफ फ्रैक्शन ऑल्सो। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू बढ़ेगा फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होगा, बढ़ेगा, तो फ्रैक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा। तो फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर के साथ इनवर्स रिलेशन होल्ड कर रहा है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होल्ड कर रहा है। इज इट क्लियर? नाउ सपोज इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस कि देयर इज अ क्वांटिटी ए, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बी, that means I will tell A is directly related to B. Now, suppose if I tell A is indirectly related to B, then can I tell A is indirectly related to B? Is it clear? A is directly related to B, A is indirectly related to B. Now the question arises, conversion of this proportionality, इसको बोलते हैं proportionality sign,
conversion of this proportionality sign into equality. Once you want to convert a proportionality sign into equality, you have to bring a proportionality constant. क्या बताया? Once you want to convert a proportionality sign into equality, then what you have to do is you have to bring a proportionality constant. Now what is the proportionality constant? A will be equals to K into B. Here A will be equals to K by B. I have removed the in proportionality by a proportionality constant. जो रिलेशन था उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए आई ब्रॉट अ proportionality constant. Remember this. Next. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी भी हो गया. देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक बता रहा हूं, बाकी हम क्वेश्चन तो क्लासेस में करेंगे. गिवन क्या है? a इज टू बी. मुझे एक पता क्या है? a प्लस बी. जनरल मेथड क्या है? जनरल मेथड इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जो स्कूल में सिखाया जाता है, दैट इज ब्रिंग अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. क्या है सर? a बाय बी गिवन है 4/3. तो मैं क्या करूंगा? a को अज्यूम कर दूंगा कि a बेटा तू बन जा 4k, b कितना हो जाएगा? तू बन जा 3k. क्यों? क्योंकि तू है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. a इज इक्वल्स टू 4 नहीं है. a इज नॉट इक्वल्स टू 4 हियर. A और B का रेशियो इज 4:3. If A और B का रेशियो इज 4:3, that means what is happening? A can have 40, B can have 30, A can have 400, B can have 300, A can have 24, B can have 18. That means their ratio is related. Their numbers are related by the ratio 4:3. That is not the value 4 and 3. Remember this. So A equals to 4k, B equals to 3k. Given क्या है? A plus B equals to 28. Now A actually क्या है? 4k. B क्या है? 3k. This is equals to 28. यानी 7k is equals to 28. आपको k कितना मिला? 4. अगर k आपको 4 मिला, कैसे मिला? 7 और 28 को कैंसिल कर दिया. k आपको अगर 4 मिला तो इसका ये मतलब a का वैल्यू था 4 into 4 16 और b का वैल्यू था 4 into 3 12. As simple as it is. बट क्या हम इसी मेथड को यूज करेंगे एग्जाम में? नो. व्हाट वी विल बी डूइंग इज अ डिफरेंट मेथड. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. गिवन क्या है? a बाय बी. a बाय बी क्या है? 4/3. पूछा क्या है? a प्लस बी. a प्लस बी गिवन क्या है? 28. मैं एक चिट कोड यूज करूंगा. व्हाट इज दैट? अंडरस्टैंड. मैं मान लेता हूं कि भाई a to 4 है, a to 4 है, b to 3 है. अगर तू ऐसे होता 4 और 3 तो तेरा वैल्यू बनता 7, पर मेरे को वो एक्सेप्ट नहीं है. व्हाट इज एक्सेप्टेड बाय मी? जब तेरा वैल्यू 28 होगा तब तेरा वैल्यू जो आएगा वही मुझे चाहिए. आई अज्यूम्ड भाई तू A4 हो जा, B तू 3 हो जा. मैं दोनों को ऐड कर दिया, 7 आया. 7 का वैल्यू कितना है? लेकिन अरे अगर 7 का वैल्यू यहां पे इंडिकेटर क्या है? 28 है या नहीं? अरे यही तो 4 यहां पे आ रहा है. 7 into 4 is 28. तो मतलब देयर इज अ चेंज ऑफ 4. यानी यहां पे जब तू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पे तू जब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तेरा वैल्यू 16 हो जाएगा और तेरा वैल्यू 12 हो जाएगा. तभी तेरा एडिशन 28 बन जाएगा. सिंपल. आई होप यू गॉट इट. अरे ये तो पता नहीं था मेरे को. ये 4 16 बन जाएगा, 3 12 बन जाएगा. देखो ये 4 है तो 3 है, 7 है, 7 28 है. मतलब देयर इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 4. तो 4 विल बिकम 16, 3 विल बिकम 12. खत्म. सिमिलरली देखो यहां पे क्या गिवन है? कितना फास्ट सॉल्व करोगे? आई हैव डेयरी मिल्क एंड 5 स्टार इन द रेशियो 5:9. ओके. अगर मेरे पास 540 5 स्टार चॉकलेट्स है, देन हाउ मेनी डेयरी मिल्क चॉकलेट्स आर प्रेजेंट विथ मी? मुझे बताओ यहां पे कौन के लेके सॉल्व करेगा? कौन लेगा? कोई नहीं. देखो 540 5 स्टार है. 5 स्टार कौन सा वाला पार्ट है? 9 का पार्ट है 5 स्टार. इसका मतलब है 540. यानी टोटल कितना हुआ? यहां पे कितना मल्टीप्लाई हुआ है? सर टोटल मल्टीप्लाई हुआ है 60. अगर मेरे को क्वेश्चन पूछेगा टोटल चॉकलेट कितना था, तो टोटल मेरा चॉकलेट 14 था या नहीं? 14 में भी 60 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 840 चॉकलेट टोटल. नहीं तो यहां पे 5 में भी 60 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 300. तो मेरे पास डेयरी मिल्क चॉकलेट कितना? 300. खत्म. क्लियर?
नाउ कम हियर, ये वाला पार्ट देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। A sum of 2 to 100 is divided among PQR in the ratio 6:4:3, then find the share of Q. इस क्वेश्चन को करने के लिए जो जनरल मेथड स्टूडेंट्स यूज करते हैं उनको बताया गया है कि P का भाग है 6K, Q का कितना है, बुक्स वोंट टेल यू दिस 4K, R का वैल्यू कितना है सर, R का वैल्यू है 3K, तीनों को ऐड किया 6 4 10 3 13, कितना बोरिंग मेथड है 13K, बट ये मेन मेथड है, इससे हम ट्रिक लाए हैं। 2 to 100 is equals to 13K, so K का वैल्यू कितना हुआ 2 to 100 डिवाइडेड बाय 13 से इसको कैंसिल किया, 13 1 जा 13, बचा कितना 9 91, मतलब टोटल हुआ 1700 या नहीं। तो K का वैल्यू कितना है 1700। अगर K का वैल्यू 1700 है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 4K है इट वुड बी 17 इंटू 4, डन। जो मैं बता रहा हूं वो यही बता रहा हूं कि इतना सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा मारो ना, 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना है 13, 13 किसका वैल्यू है, 13 किसका वैल्यू है, 13 2 to 100 का वैल्यू है। चाहिए क्या सर, चाहिए मुझे 4, इंटू 4 कर दो, आंसर क्लियर। नेक्स्ट, डिग्री सेम लॉजिक। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिला A:B अगर 4:3 है एंड इट इज आस्किंग यू ऑल दिस, सो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा अगर ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम है, नहीं तो रेशियो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि ऊपर देखो डिग्री सेम है या नहीं, AB है, यहाँ पे AB है, यहाँ पे A² B² है, ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 2 है, यहाँ पे ऊपर 2 है लेकिन B का 1 है, यहाँ पे 2 है B का 1 है, चेंज हो गया, क्लियर। मतलब जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, A की जगह कितना डालोगे 4, B की जगह कितना डालोगे 3, तो 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 3, आपका आंसर आ जाएगा। पर ये लॉजिक तभी वैलिड होगा जब ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम हो, मतलब ऊपर का डिग्री कितना है 1 है, नीचे का डिग्री कितना है 1 है। सर डिग्री ना मुझे समझ में नहीं आता है, आप फिर से बताओ। A को मैं K पुट करूंगा और B को मैं KB पुट करूंगा, एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखोगे तो A के जगह मैंने KA पुट किया और B के जगह मैंने KB पुट किया और नीचे मैंने क्या किया 2 टाइम्स ऑफ KA पुट किया और -4 टाइम्स ऑफ KB पुट किया, और K के ऊपर से नीचे से सारे जगह से कैंसिल हो गया। पर इस वाले क्वेश्चन में वो नहीं हो पाएगा, K² A² हो जाएगा प्लस KB रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाय K² A² हो जाएगा माइनस KB रह जाएगा, ऊपर एक K प्रेजेंट रह जाएगा, एंड इफ अ K इज रिमेनिंग यू कैन नॉट इवेलुएट इट फर्दर। आई होप यू गॉट इट क्लियर। सो दैट इज व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि द डिग्री मस्ट बी सेम। यहां से आप क्या करोगे, ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री सेम है, यहां से बस इवेलुएट करके A और B निकालोगे, उसके बाद इवेलुएट करोगे। विल डू इट इन द थर्सडे सेशन। कम टू दिस क्वेश्चन, यहां पे मुझे कुछ बताना है आपको। दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक है ये वाला टाइप, A:B equals to 2:3 and B:C equals to 6:8, then find A:B:C। रिमेंबर दिस। इसमें हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग अप्रोच यूज करते हैं। व्हाट इज दैट शिफ्टिंग अप्रोच, आई विल टेल यू, बट नॉर्मली एक स्टूडेंट कैसे इसको यूज करता है, देखो A/B कितना गिवन है 2/3 और B/C कितना गिवन है 6:8। देखो 3 अप्रोचेस बताऊंगा, 3 अप्रोचेस। दिस इज योर फर्स्ट अप्रोच। अ स्टूडेंट विल टेक, लेट मी टेक अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। A को उसने माना 2K और B को उसने माना 3K। यहां पे उसने क्या किया, B को माना 6K और C को माना 8K, राइट। इज इट क्लियर, ऐसे नहीं करेंगे। देखो 3A इक्वल्स टू 2B, 8B इक्वल्स टू 6C। मुझे ABC तीनों को कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, B इक्वल्स टू कितना है 3A/2, तो यहां पे जाके B के जगह डालूंगा, कितना आएगा 3A/2,
इक्वल्स टू 6c, 2 से इसको कैंसिल किया 4, आंसर आया 12a इक्वल्स टू 6c। सो विच इंप्लाइज c कितना हो रहा है 2a। सबको आप एक फॉर्मेट में ले आए, b को और c को। मुझे किसका रेशियो चाहिए सर? मुझे चाहिए a:b:c। a को a एज इट इज रखा, b कितना है सर? b है 3a/2, c कितना है 2a। हर जगह 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूं, द रेशियो वुड रिमेन द सेम। तो मैंने 2a:3a:4a कर दिया। क्लियर? नाउ ए कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना मिला 2:3:4। इज इट क्लियर? देयर इज अनदर वे टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप। ये जो ट्रैप है, इस ट्रैप से बाहर निकलने का एक तरीका है, वो ट्रिक मेथड है। वो क्या है देखो। व्हाट आई विल डू, आई विल आइडेंटिफाई इन दोनों के बीच का म्यूचुअल फ्रेंड कौन है। कौन है सर? बी है। बी इज द म्यूचुअल फ्रेंड अमंग बोथ ऑफ देम। जो इनको कनेक्ट करेगा वो बीच में रहेगा, उसको बीच में रखा। ए एक बार बी के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद सी के साथ कनेक्टेड है। a:b कितना गिवन है 2:3, b:c कितना गिवन है 6:8। मैं ट्रिक क्या लगाऊंगा सुनो, मैं ट्रिक लगाऊंगा, ये सिचुएशन आना चाहिए, ये कॉमन है और इसके पास 2 क्वांटिटी है, इसको यहां पे शिफ्ट मार दो 3, जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, जो यहां पे लिखा है वो यहां पे आ जाएगा और जो यहां पे लिखा है वो यहां पे आ जाएगा। गॉट इट? अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12, 18, 24। कैन इट बी कैंसल्ड विथ 6? यस। इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 3 और इसका आंसर आएगा 4। खत्म। नो नीड टू डू ऑल दिस। क्लियर? देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे फटाक से करोगे। क्या गिवन है? a:b इक्वल्स टू 5:8, c:b इक्वल्स टू 4:3। कैसे करोगे सर? म्यूचुअल फ्रेंड बी है, a b c, b बीच में, a:b कितना है 5:8। अच्छा, c:b 4:3 है, यानी b:c 3:4 है। बी वेरी केयरफुल। तो ये 3:4 आएगा। अभी मैं इसको शिफ्ट मारूंगा 8 आएगा, इसको शिफ्ट मारूंगा 3 आएगा। टोटल मल्टीप्लाई करो, 15 आया, 24 आया, 32 आया। तो आंसर वुड बी 15:24:32। सॉल्व। क्लियर? जो एक दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है वो ये वाला है। If 3x equals to 5y equals to 4z, then evaluate x is to y is to z. Evaluate x is to y is to z. कैसे इवेल्युएट करोगे सर? ये तो कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। नहीं, वो टाइप का है, बट इट हैज बीन शोन टू यू इन अ डिफरेंट फॉर्म। सर कैन आई राइट 3x equals to 5y? Can I write 5y equals to 4z? So can I tell x by y is nothing but 5/3? Can I tell y by z is nothing but 4/5? क्लियर? x by y अगर 5:3 है तो उनके बीच का जो रिलेशन होगा x y z होगा। x y क्या है 5 और 3 है, y z क्या है 4 और 5 है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्टिंग और इसको शिफ्टिंग, तो टोटल आंसर कितना हो गया 20:12:15। खत्म। इसका भी एक ट्रिक है, आई होप यू आर कलेक्टिंग ऑल दोस ट्रिक्स। अगर इस टाइप का दिखा, कौन से टाइप, 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 4z, इसका ट्रिक सुनो। आई थिंक ये ट्रिक मैंने शायद लास्ट ईयर नहीं बताया था, अभी याद आ गया, अभी इंस्टेंटली याद आया कि हाँ ये एक ट्रिक था। स्कूल के डेज में इतने ट्रिक सीखे थे कि एनटीएससी वगैरह होता था ना। सो सी 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 4z, इसका ट्रिक है डायरेक्टली मैं लिखूंगा x is to y is to z। कैसे सुनो, किसका निकाल रहे हो, x का। x के पास कौन है 3 है, उसको छोड़ दो, बाकी दोनों कौन है 5 into 4 कितना है 20। y को होल्ड पे रखो, y को हाइड कर दो, ठीक है। y को आपने हाइड किया, 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 12। फिर z को हाइड करो, 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन, आंसर वुड बी 15। आई थिंक आई गॉट दिस आंसर समवेयर, यहीं पे
20:12:15. Is it clear? But it is applicable for such type. ये टाइप में आप क्या करते हो, हाइड मेथड, इसको छुपा देते हो, बाकी दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हो. ठीक है. नाउ फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. बहुत सारे क्वेश्चंस है. अगर ये टाइप आता है, कैन रेशियो बी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन? एब्सोल्युटली नॉट. तो उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे. 1:2:1:4 1:5. 2 और 4 और 5 का एलसीएम लोगे, कितना आएगा? इवेल्युएट करोगे सर. 2 4 5. आप पहले 2 से कैंसिल करोगे, 1 2 5 आ जाएगा. 5 × 4 = 20. तो 20 मल्टीप्लाई कर दो. 20 मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना होगा? 10. ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4. Ratio cannot be in negative, ratio cannot be in fraction, ratio has to be in this form. Clear? Now few other questions are given to you. You go through it or else we'll discuss. हम तो डिस्कस वैसे भी करेंगे अपने थर्सडे सेशन में. ठीक है. There are various practice problem. Start solving it. जितना हो रहा है, नहीं तो मैं तो करवाऊंगा ही. ठीक है. So with this we complete our concept classes of ratio. Question classes will follow in Thursday. ठीक है. बाकी वेरियस मेथड्स वगैरह वो क्वेश्चन का इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि ये वाला जो सेशन है इट इज कंप्लीटली प्योर बेसिक्स, सो दैट एग्जाम के पहले अगर आपको रिवाइज करना है, क्विक रिकैप मारना है ऑफ द बेसिक्स, यू कैन कम टू दिस लेक्चर एंड वॉच. बाकी आपका प्रैक्टिस सेशन विल बी ऑन थर्सडे. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय. टेक केयर एवरीवन. Hello everyone. We are starting with a new topic today of the theme ratio and proportions, and the topic is proportions. We have completed ratios concept class, and this is proportions concept class. After that, the Thursday session for your question practice. Now, before beginning, I want to revise few things. Suppose, as I told you the concept, I want to give a question, and the question goes like this. Suppose you are given with A is to B as 2:3, B is to C as 5:2, C is to D as 3:7. Directly can you obtain A is to B is to C is to D? Similarly, another question, A is to B is given as 3:1, B is to C is given as 3:1, C is to D is given as 3:1, or D is to E is given as 3:1. Clear? And I want to obtain A is to B is to C is to D is to E. The remaining tricks वगैरह of ratios will be done on question to question basis, but ये वाला बहुत important है. Understand कि without taking K we can do this. तो पहले लिखेंगे B का, because this would be 2:3 और B is to C कितना गिवन है? 5:2. C is to D कितना गिवन है? 3:7. The trick goes like this. कि आप यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट मार दो 3 को और ये 2 को. 3 will go like this, 2 will go like this, 5 will come here, and ये वाला जो क्वांटिटी है it will come here. This would be 3 और ये 3. Now you multiply this. 5 × 3 15, 15 × 2 is 30 is 2. 5 × 3 is 15, 15 × 3 is 45 is 2. 3 3s are 9 × 2 is 18 into 7 2s are 14, 14 3 42. Clear? Now do the remaining calculation cancellation part. 3 से अगर कैंसिल करोगे this will become 10. 3 से अगर कैंसिल किया this will become 15. 3 से कैंसिल किया 14. So the ratio is 10:15:6:14. Clear? Without taking K. Similarly here also you can do. This would be 3:1, again 3:1, again 3:1, again 3:1. Copy 1 here, copy 3 here. यहाँ पे अगर आप खड़े होते तो आपको ही पूरा कॉपी करना होता. जो यहाँ पे है दैट विल बी कॉपीड. ठीक है.
to the blank places, and जो यहाँ पे है that would be copied to the blank places to the left. Clear? Now multiply this. This would be 3 to the power 4, which is 81. This would be 3 to the power 3, which is 27. This would be 3 square, which is 9, and this is 3, and this is 1. This is your ratio. Okay. Next, coming to the next topic, which is proportions and the concepts part of proportion. Let us understand one by one. First of all, what is the meaning of proportion? Meaning of proportion is, it is the comparison of two ratios. That is, now suppose you are given with A by B is equals to C by D. That means you are comparing two ratios. It can also be written as A is to B is proportionate to C is to D. If you can write it in this way, it is also proportion. That means you are comparing two ratios with the equality sign. This can also be written by A by B is equals to C by D. तो इसका क्या मतलब? This is A by B and this is C by D. Now both will be equal. Is it clear? Few notation you need to remember: means and extremes and the proportion. Understand? Suppose you are given with A is to B is proportion to C is to D. ये जो दो terms है ना, these two terms are called as the means, while these two terms are called as the extremes. Means and extremes. Now let us go to the question. A property, product of the extreme is equals to product of the means. What is that? Now suppose you are given with A is to B is proportion to C is to D. What does this imply? This implies A by B is now equals to C by D. So which can be written as AD is equals to BC. अगर AD BC के साथ इक्वल है, इसका क्या मतलब? A and D are the extremes, B and C are the means. A into D is the product of the extremes, B into C is the product of the means. So product of the extreme is equals to the product of means. Clear? Another concept, componendo and dividendo. अंडरस्टैंड, घबराना नहीं है वर्ड्स पे. componendo and dividendo. Now let us understand what is componendo and what is dividendo. Suppose you are given with A by B is equals to C by D. ठीक है, A by B is equals to C by D. यानी अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आया x by y is equals to 3 by 1 and it wants to ask you x plus y by x minus y. I have already told you the trick of this. इसमें x को 3 मान लो, y को 1 मान लो. अगर डिग्री सेम हुआ तो this will be 3 plus 1 4 divided by 3 minus 1 2. The answer would be 2. यही जो लॉजिक मैंने यूज किया, this is componendo and dividendo. Let us understand the definition part of it. A by B is equals to C by D. Now what is that? Now suppose I will do A by B plus 1, it is equals to C by D plus 1. हमने क्या किया? दोनों तरफ 1 ऐड किया. So you will get one formula here, that is A plus B by B is equals to C plus D by D. This is formula number 1. Let us come to the next one. Suppose I subtract 1 from both sides. What will happen? C by D minus 1. This will be equals to A minus B by B is equals to C minus D by D. This is formula number 2. What I will do? I will divide both of them. Property number 1 और property number 2 को मैं divide कर दूंगा. Now if I divide property number 1 and property number 2, it will look like this or not? A plus B by B, A minus B by B. This is now equals to
c plus d by d divided by c minus d by d. Now I have taught you in percentages fraction by fraction comparison. What will happen now? देखो a plus b by b है, बाकी वो नीचे वाला जो पार्ट है वो रिवर्स हो जाएगा. It will be b by a minus b. This is now equals to c plus d by d, और ये जो पार्ट है वो रिवर्स होके d by c minus d हो जाएगा. b b cancelled, d d cancelled. तो your answer would be what? a plus b divided by a minus b is now equals to c plus d divided by c minus d. इसी को ही कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं. क्लियर? a plus b by a minus b is equals to c plus d by c minus d. Now what is this actual logic? How can you use it directly? दो रेशियो का कंपैरिजन अगर गिवन है, x जो ऊपर है उसके साथ जो नीचे वाला है उसको ऐड करो एक बार. यहाँ पे भी जो ऊपर वाला है और ये जो नीचे वाला है उसको भी ऐड करो. नीचे क्या करोगे? x और y को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर दो. तो कितना आया आंसर? 4/2. द आंसर इज 2. Is it clear? This is componendo and dividendo for you people. I hope you got it. बड़ा simple. Next. Let us understand what is first proportion, second proportion, third proportion and fourth proportion. Proportion is not a big topic, but थोड़ा conceptual है. ये first proportion कभी पूछा नहीं है UPSC में. But if at all it asks you a question कि find the first proportion, second proportion, third proportion and fourth proportion, how you gonna attempt it? 4 questions है. Find the first proportional to A, B, C. First of all, understand पूछा क्या है? First proportion. आपके पास 4 places है to fill. Like this. If it is asking you the first proportion, the first proportion will be x. जो remaining ABC है, in its sequence manner, place it as per the order. ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा. Now find x. This is first proportion. तो कैसे होगा? Sir, product of the extreme is equals to product of the mean. So product of the extreme is CX. Product of the mean is AB. So x will be equals to AB by C. Is it clear? Let us come to the next one. A, B and C पूछा क्या है? Second proportion. तो can I write like this? A is to x, second proportion में x है और ये B is to C हो जाएगा. End का extreme का product यानी AC is now equals to BX. So what will be the value of x? X will be equals to AC by B. Clear? Let us come to the next one. Find third proportional to ABC. Third proportion का मतलब है A is to B, X is to C. तो कितना हो जाएगा? A is to B is to X is to C. AC is equals to BX. So which implies X कितना हो जाएगा? AC by B. The product of the extreme is equals to product of the means. The next question is find the fourth proportional to A, B and C. Fourth proportional यानी A is to B और ये C is to X. तो क्या हो जाएगा? AX is equals to BC. So which implies X will be now equals to BC by A. Got it? I hope it is pretty clear. Let us come to the next one. First, mean and third. अगर तीन नंबर्स का प्रोपोर्शन निकालना है तो इसमें थोड़ा रिपीटेशन होगा. फर्स्ट, मीन एंड थर्ड. अंडरस्टैंड? ये एक लोकेशन है, ये एक लोकेशन है और ये एक लोकेशन है. दिस इज योर फर्स्ट लोकेशन. दिस टू आर द मीन लोकेशन and this is your third location. Is it clear? तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन इफ टू नंबर्स आर ए एंड बी. ऑर्डरिंग देखना है. इसका ये मतलब मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट प्रोपोर्शन. अगर मेरे को फर्स्ट प्रोपोर्शन चाहिए तो फर्स्ट पोजीशन x होगा. जो दूसरा वाला पोजीशन आएगा वो किसका आएगा? मीन का आएगा. तो मीन वाले पोजीशन में कौन आ रहा है? a.
जो यहां पे आएगा वही आदमी यहां पे आएगा, बिकॉज 3 नंबर का प्रोपोर्शन आप निकाल रहे हो, तो यहां पे a आ जाएगा एंड दिस सेम थिंग विल बी रिपीटेड हियर इज टू b. नाउ व्हाट विल हैपन, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज bx इक्वल्स टू a स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई b. दिस इज फर्स्ट मीन एंड थर्ड कॉन्सेप्ट. जो मीन पोजीशन में आएगा वो रिपीट हो जाएगा अपने थर्ड पोजीशन में, एंड दिस थर्ड पोजीशन, जो 3 नंबर्स का जो थर्ड पोजीशन है, दैट विल बी द लास्ट नंबर. ऑर्डर में देखना है. क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन इफ 2 नंबर्स आर a एंड b. आपको निकालना क्या है? मीन प्रोपोर्शन निकालना है. मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना है, दैट मीन्स व्हाट यू विल डू इज, मीन प्रोपोर्शन यानी जो हमें चाहिए, क्या चाहिए? मीन प्रोपोर्शन. यानी पहला नंबर कौन होगा? a होगा. a मीन प्रोपोर्शन मुझे चाहिए, जो मीन प्रोपोर्शन में आया वही यहां पे रिपीट हो जाएगा इज टू b. तो व्हाट विल हैपन इज, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ab is equals to now x square, so which implies x will be equals to under root ab. I hope you got it. Now what is the last question? Find the third proportion if 2 numbers are a and b. थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, 2 नंबर है a और b, यानी फर्स्ट पोजीशन में a आ जाएगा, नेक्स्ट वाले पोजीशन में b होगा. तो मीन वाला पोजीशन अगर b है तो यहाँ पे भी b आएगा. इज टू थर्ड प्रोपोर्शन इज x. Now what will happen? ax is now equals to b square. So x will be equals to b square by a. Is it clear? I hope you got it. So with this we come to an end to the proportions. I hope you have enjoyed the lecture. Let us meet in the Thursday session for the remaining practice of ratio session. Okay? So thank you for watching this lecture. Have a great day.